Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in JAMC International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video, I will continue your revision, okay? Students, ये वीडियो में मैं आपका जो रिवीजन है जो बाकी था वो कंटिन्यू कर रही हूँ, ओके? स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इस 20 मार्क्स की जो आपके टेस्ट है उसके लिए पेपर स्टाइल दिया था, उस हिसाब से आपको करना है, ओके? टिक द करेक्ट आंसर ऑल द पैराग्राफ। उसमें यूनिट 7 और 8 हो गया था, अभी हम यूनिट 9 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैंने यहाँ अंडरलाइन करके ही रखा था, ओके? यानी 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके? सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर, ओके? नाउ यूनिट 9, उसमें पेज नंबर 105 वन पैराग्राफ है, 1 नंबर का पैराग्राफ है दिस वन, ओके? ये रहा यूनिट 9, उसमें फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ है इस तरह, ओके? चलो नाउ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वो वॉज सिम्बा वेयर डिड ही लिव, ओके? वो वॉज सिम्बा मतलब कौन सिम्बा था और वो कहाँ रहते थे? सो आंसर इज सिम्बा वॉज अ लॉयन। ही lived in the African savanna, okay? Savanna means forest. Second question is what did Simba do in the savanna? Again, what did Simba do in the savanna? So answer is Simba played in the plains, running and jumping with his friends the lions and leopards, okay? यानी Simba played in the plains, running and jumping with his friends the lions and leopards, okay? Now question third is what was Simba's special gift? मतलब सिम्बा की स्पेशल गिफ्ट कौन थी? Whenever Simba rode means गर्जना करना. Whenever Simba rode, he created a strong wind like a hurricane. Again repeat. Whenever Simba rode, he created a strong wind like a hurricane. Okay? So students, ये थे आपके यूनिट 9 का फर्स्ट चैप्टर. अब है यूनिट 10 में पेज नंबर 180, ओके? उसमें ये रहा 180, उसमें ये रहा क्वेश्चंस पैराग्राफ, 3 नंबर का पैराग्राफ. यूनिट 10 में पेज नंबर 180, ओके? उसमें 3 नंबर का पैराग्राफ है, ये रहा. चलो क्वेश्चंस पैराग्राफ यू हैव टू रीड, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड द वेजिटेबल्स फील? सो आंसर इज द वेजिटेबल्स would feel more angry and hurt. Again I repeat this answer. The vegetables would feel more angry and hurt, okay? Second question is who did not like जीत? मतलब किसको जीत अच्छा नहीं लगता था? So answer is Mr. Potato did not like जीत. Answer is Mr. Potato did not like जीत, okay? Question 3 is who wanted to spank जीत? मतलब कौन स्पांक करना चाहता था? सो मिस भिंडी wanted to spank जीत, ओके? 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर करेला से? मतलब मिस्टर करेला ने क्या कहा? सो आंसर इज Mr. Karela said that I know how to deal with this stubborn boy. Stubborn means हट करने वाला जो लड़का होता है ना उसको stubborn बोलते हैं, ओके? हठीला जिसको बोलते हैं ना, ओके? अगेन आई रिपीट दिस आंसर. Mr. Karela said that I know how to deal with this stubborn boy, okay? सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पैराग्राफ. नाउ क्वेश्चन टू देखो. क्वेश्चन 2A में है राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट फॉलोइंग पीपल, ओके? हमें कोई एनी 2 लिखना है, इनमें 3 आएगा, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है 6 मार्क पर, ओके? इसके लिए पेज नंबर 94, 95 और 96, ओके? चलो
ये रहा देखो। ओके, फर्स्ट है सरदार पटेल। ओके, चलो सरदार पटेल के लिए बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न इन नडियाद। ही वॉज बॉर्न इन नडियाद इन गुजरात। ही इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। He is known as the Iron Man of India. He was the first Home Minister and the first Deputy Prime Minister of India. He was honored with the Bharat Ratna. Okay, he was honored with the Bharat Ratna. Okay. Now Bhagat Singh. Bhagat Singh. Okay. He was a freedom fighter who laid down his life for the country. He was hanged by the British for his activities. He is known as Shahid Bhagat Singh. He is known as Shahid Bhagat Singh. Okay, so ये था भगत सिंह के बारे में. Okay, now जगदीश चंद्र बोस. थर्ड है जगदीश चंद्र बोस. ओके, जगदीश चंद्र बोस. आंसर इसका है ही वॉज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. ओके, ही वॉज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. He proved that plants are sensitive to heat, cold, light and noise. In short, he proved the plants to have life. Okay, he proved the plants to have life. He invented a machine called crystallograph. He invented a machine called crystallograph, which recorded the movements of plants. Okay. Now Mahatma Gandhi. चलो महात्मा गांधी के बारे में हम करेंगे ना. ओके, चलो फाइन. He fought. महात्मा गांधी के बारे में. ओके, he fought against the British to give us freedom. He fought against the British to give us freedom. He believed in truth. And non-violence. Okay. He is called the father of the nation. Okay. Now turn your page. Now 5 नंबर का स्वामी विवेकानंद. ओके, स्वामी विवेकानंद, उसके बारे में हम लिखते हैं. चलो. He was born in कोलकाता. His real name was Narendranath Datta. He was a disciple of Ramakrishna. He traveled all over the world to talk about the Hindu religions. So students, ये 5 में से कोई भी 3 आएंगे और 3 में से आपको कोई भी 2 लिखना है. ओके, चलो स्टूडेंट्स, ये 5 जो आपने करवाए ना, वो उसमें से कोई भी 3 आएंगे, 2 आपको लिखना है 6 मार्क के. ओके, नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यानी बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उससे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपको फिल करनी है. ओके, ये यूनिट 9 में है, पेज नंबर 110. ओके, उसका क्वेश्चन 9 है. चलो मैं बता दें, ये रहा पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 9. फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स. ओके, यहाँ आपको साउंड्स करना है, जैसे हॉर्स, नैन, आउल, हुड, वो आपको खुद को करना है. ओके बच्चों, ये एकदम इजी है, आपको देख लेना है तो देख लो, मैंने वीडियो में रखा है. ओके, आपको करना है किस तरीके से, वो आपको खुद को करना है. ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, आप जो रिवीजन है 20 मार्क्स का, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. ओके,
एक बात बोल, एक बार रिवीजन करने से कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको बार बार थोड़ा सा रिपीटेशन करना पड़ेगा। रिपीट जितना करोगे उतना आपकी क्लियरिटी क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी क्वेरीज होगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो मैं आई होप कि आप घर पर रीड कर रहे होंगे टेस्ट के लिए। ओके, एक बार रिवीजन हो गया, घर पर फिर से 2-3 बार कर लेना रीडिंग। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।